Hello everyone, I'm AP Singh and we have already had the first class of this GK and current affairs area. Now in this class we'll move forward and we'll try and cover some of the other informations. First we'll take the topic which is very much in news from the international arena, especially that is election of President of US. And we have seen recently our former President of India, Pranab Mukherjee, demise has taken place. So in that context also the question may come in the examination comparing the President of US with the President of India. So we'll try and cover all those information. So this here we'll take this topic, that is President of the US. First remember, this officially also in many documents in US they use the term POTUS. When we say POTUS, that is President of the US. President of the US. President of the United States. President of the United States, that is POTUS. Now first, why this is in news? न्यूज में क्यों है? उसका रीजन है कि 59th क्वाड्रेनियल इलेक्शन. पहला क्वेश्चन, 59th क्वाड्रेनियल इलेक्शन. क्वाड्रेनियल इलेक्शन जब हम बोलते हैं क्वाड्रेनियल इलेक्शन, इसका मतलब है एवरी 4 ईयर, एवरी 4 ईयर्स, हर 4 साल में. तो यहाँ पर क्वाड्रेनियल इलेक्शन 59 में इलेक्शन है ये जो अभी होंगे इलेक्शन, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, अगले प्रेसिडेंट ऑफ यूएस का चुनाव होगा. सो 59 क्वाड्रेनियल इलेक्शन. अभी जो इस समय प्रेसिडेंट है इनकम्बेंट प्रेसिडेंट जो है, जो अभी इनकम्बेंट पोटस हैं, वो है डोनाल्ड ट्रंप की खास बात क्या है? डोनाल्ड ट्रंप इज द ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट, ओल्डेस्ट मींस एज वाइज, ओल्डेस्ट टू अज्यूम प्रेसिडेंसी. इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट बनने वाले सबसे जो ओल्डेस्ट पर्सन हैं, जिन्होंने ओल्डेस्ट टू अज्यूम प्रेसिडेंसी, वो है डोनाल्ड ट्रंप. और एक खास बात क्या है कि अभी जो 59 क्वाड्रेनियल इलेक्शन है, इसमें टू मेजर पॉलिटिकल पार्टीज we know in the US election, one is Democratic Party and other is Republican Party. But please do remember that in the examination, if the question comes that way कि यूएस के इलेक्शन में सिर्फ 2 ही पार्टीज यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, और भी बहुत सारी पार्टीज हैं, 2 मेजर पार्टीज हैं, एंड अदर पॉलिटिकल पार्टीज इन द इलेक्शन. एग्जांपल, देयर इज अ जस्टिस पार्टी और ग्रीन पार्टी और लिबर्टेरियन पार्टी, ऐसी बहुत सारे पार्टीज हैं. तो प्लीज इसका मतलब है कि यूएस के इलेक्शन में, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में सिर्फ 2 पार्टीज पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसा नहीं. और दूसरी बात याद रखेंगे, इट्स नॉट नेसेसरी दैट, रिमेंबर, पीपल हु वांट टू कंटेस्ट फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन shall belong to either of those 2 parties or they shall belong to such parties. It's not needed. But since over the period of time those 2 parties representatives have been there at the helm of affairs, controlling the power, that's why generally we say US is having a 2-party system. So when we say 2-party system, it doesn't mean only 2 party exist in the electoral process participating in the election. No, 2-party system means that 2 parties have been dominant over the period of time, principally sharing the power, sometimes in the hands of Democratic Party, sometimes in the hands of the Republican Party leaders. So one is Democratic and second is Republican Party. Now, when we say the Democratic Party here, the candidate from the Democratic Party is Joe Biden. And Joe Biden has got the running mate. जो वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है उनको बोलते हैं रनिंग मेट. तो यहाँ पे जो रनिंग मेट है जो बाइडेन की, वो रनिंग मेट है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी बोल देते हैं उनको, दैट इज कमला हैरिस, पर्सन ऑफ इंडियन origin, Kamala Harris. This Kamala Harris, she is a senator from California. California is the most populous state of US. California is the most populous state of US. जैसे इंडिया का मोस्ट पॉपुलर स्टेट उत्तर प्रदेश, वैसे यहाँ पर मोस्ट पॉपुलर स्टेट ऑफ यूएस इज कैलिफोर्निया. वहां से सेनेटर है, राइट, सी इज सेनेटर फ्रॉम दिस. कैलिफोर्निया से 2 सेनेटर्स हैं. तो दूसरा कभी क्वेश्चन हुआ यहाँ से, तो दिस इज सेनेटर्स फ्रॉम कैलिफोर्निया. एज ऑफ नाउ सेनेटर्स फ्रॉम कैलिफोर्निया. सो 2 सेनेटर्स फ्रॉम कैलिफोर्निया. One is Kamala Harris, and other is
Other is Dianne Feinstein. This Dianne Feinstein, she is the other one. एंड कमला हैरिस, 2 senators फ्रॉम कैलिफोर्निया। यूएस के हर स्टेट से 2 senators होते हैं। एवरी स्टेट हैज गॉट द रिप्रेजेंटेशन इन द सेनेट एंड एवरी स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 senates when it comes to 2 senators in the Senate. We'll talk about that little later, but first question is candidate. So one is Joe Biden and second is Kamala Harris. And please remember Joe Biden is older than Trump. Joe Biden is older than Trump. तो खास बात क्या है इस 59 quadrennial election की, नंबर याद रखेंगे 59। दूसरा, whomsoever becomes a president again will be the oldest to assume the presidency again. So Donald Trump already oldest. If the Joe Biden becomes, then Joe Biden will become the oldest. Already the Donald Trump is oldest. So it means remember Joe Biden उन्होंने से भी बड़े हैं एज में, तो then Joe Biden if he gets elected will become oldest. Otherwise Donald Trump is already oldest to assume presidency. Last time भी थे, 4 साल उसमें ऐड हो जाएंगे। रिपब्लिकन पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उसमें है डोनाल्ड ट्रम्प एंड माइक पेंस उनके रनिंग मेट हैं। तो माइक पेंस इज रनिंग मेट, तो यहाँ पे जो पोटस के कैंडिडेट हैं वो डोनाल्ड ट्रम्प। तो पहला क्वेश्चन, वन इज डेमोक्रेटिक पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी। फिर इसके बाद में यहाँ पर when we talk about again these points, so presidential election here Donald Trump is the oldest to assume presidency, 59th election. अब यहाँ पर एक एक करके पॉइंट अगर हम देखेंगे तो पहली तो बात है पोटस को इलेक्ट कौन करता है। तो पोटस के लिए प्रेसिडेंट ऑफ यूएस के लिए एलिजिबिलिटी की कुछ इंपॉर्टेंट बातें क्या है। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नंबर 1 शैल बी अ नेचुरल बॉर्न सिटीजन। It means the person must be born in US. US में ही पैदा होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो 5 टाइप ऑफ सिटीजनशिप है, जैसे सिटीजनशिप बाय बर्थ, सिटीजनशिप बाय डिसेंट, सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, सिटीजनशिप बाय एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी, राइट। व्हेन वी टॉक अबाउट दिस एंड सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन बाय एप्लीकेशन। तो अगर हम इंडिया में सिटीजनशिप बात करें इंडिया के केस में, तो इंडिया के केस में हम बात करते हैं सिटीजनशिप बाय 5 मीन्स, 5 तरीके से सिटीजनशिप मिल सकती है। बाय 5 मीन्स, वन इज सिटीजनशिप बाय बर्थ, सिटीजनशिप बाय डिसेंट, नंबर 3 इज सिटीजनशिप बाय एप्लीकेशन, आपने एप्लीकेशन बाय रजिस्ट्रेशन, राइट, एप्लीकेशन दी उसके लिए। सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, and citizenship by naturalization and citizenship by acquisition of territory। अगर कोई टेरिटरी इंडिया का पार्ट हो गई है तो सिटीजनशिप बाय एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी। अगर हम एनआरसी वगैरह के इश्यूज देखेंगे तो वहां पे फिर सिटीजनशिप दोबारा देख लेंगे। पर अभी क्या बता रहा हूं कि हम प्रेसिडेंट ऑफ यूएस को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं, तो इन केस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन केस ऑफ POI आई एम राइटिंग हियर, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन की बात करते हैं, इन केस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एलिजिबिलिटी, तो वहां पर एनी टाइप ऑफ सिटीजन होना जरूरी है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के केस में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के केस में सिटीजन होना जरूरी है। 5 में से किसी भी तरीके का बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय एप्लीकेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी। लेकिन जब यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बात करते हैं तो वहां पर नेचुरल बॉर्न सिटीजन होना जरूरी है। एग्जांपल के लिए पर्सन मे बी बॉर्न इन यूएस, लेकिन बैरक ओबामा, एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बैरक ओबामा वाज बोर्न इन हवाई, जिसे लोगों को गलती से लगता है कि शायद वो अफ्रीका से थे etc. No, he is a natural born citizen of US. Nobody who's not a natural born citizen of US can become the president of US, cannot contest for the post of president unless a person is born in US itself. So Barack Obama was born in Hawaii. In fact, remember Hawaii is the only 50th state of US. 50th state of US. US में 50 स्टेट हैं। एक और क्वेश्चन आता है कि US का 50वां स्टेट, सबसे लास्ट में जो US का स्टेट बना है, जुड़ा है उसमें, वो हवाई आइलैंड है। So Hawaii is the last to become the state of US, and Barack Obama was the first POTUS to be born outside mainland USA, outside mainland। जब हम मेनलैंड की बात करते हैं तो जो मेन नॉर्दर्न अमेरिका की कॉन्टिनेंट में जो मेन यूएस है वो मेनलैंड हो गया। उसके बाहर जो है जैसे आइलैंड्स वगैरह, उसमें से एक आइलैंड स्टेट है। तो एक स्टेट है जो जमीन से मेनलैंड से जुड़ा नहीं है, वो है
हवाई आइलैंड, एंड हवाई आइलैंड प्लीज डू रिमेंबर, लाइक जैसे हम बात करते हैं मेनलैंड ऑफ इंडिया, तो उसमें अंडमान निकोबार इज नॉट पार्ट ऑफ मेनलैंड ऑफ इंडिया, इंडिया का पार्ट, इंटीग्रल पार्ट, बट वो आइलैंड है, दूर लोकेटेड है। जैसे एग्जांपल के लिए लक्षद्वीप की बात करते हैं तो मेनलैंड, वो जो हम मेन लैंड की बात कर रहे हैं यहाँ पर। So Obama was the first POTUS to be born outside mainland. Barack Obama was born in Hawaii. He is called as African American president because इस समय अभी Indian American, African American, कमला हैरिस के देखेंगे तो फादर मदर दोनों से देखेंगे तो Indian American as well as this African American, Caribbean American ऐसे लिखा रहता है अलग अलग तरीके से. So please remember that is one is what natural born citizens, one is POTUS की एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो नंबर 1 इज नेचुरल बॉर्न सिटीजन. नंबर 2 इज एज. नंबर 2 इज एज. मिनिमम एज इज 35 years. Minimum age 35 years. And number 3 is minimum residence in US. कम से कम रेसिडेंस इन यूएस होना चाहिए, रेसिडेंस इन यूएस ऑफ 14 इयर्स. कम से कम 14 सालों का एक रेसिडेंस होना चाहिए इन यूएस ऑफ 14 इयर्स. अब खास बात क्या इसमें देखेंगे, अगर पोटस के कैंडिडेट को कंपेयर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू अ कैंडिडेट हु इज फ्रॉम कंटेस्टिंग फॉर द प्रेसिडेंशियल पोस्ट इन इंडिया, सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगर हम देखेंगे कंपेयर करने के लिए, आप ऑलरेडी टोल्ड यू इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं जो एग्जामिनेशन में मिलेंगे और आप फिर सॉल्व हो जाएंगे. तो पोटस में देखेंगे तो मिनिमम एज यहाँ पर कितनी है, मिनिमम एज इज 35 ईयर. यहाँ पर मिनिमम एज कितनी है, 35 ईयर. दोनों जगह मिनिमम एज 35 ईयर्स, इंडिया में भी. पोटस के केस में यहाँ पर मिनिमम रेसिडेंस है, मिनिमम रेसिडेंस की रिक्वायरमेंट है, मिनिमम रेसिडेंस की रिक्वायरमेंट यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर नो सच नीड, ऐसी कोई जरूरत नहीं है. राइट, मिनिमम रेसिडेंस की कोई जरूरत नहीं है. साथ ही साथ यहाँ पे सिटीजन होना जरूरी है, बट ये सिटीजन कैसा होना चाहिए, बाय बर्थ, सिटीजन बाय बर्थ. यहाँ पर सिटीजन होना जरूरी है इंडिया के केस में, बट सिटीजन बाय एनी मीन, सिटीजनशिप by any means. So यहाँ पे citizenship है which may have been acquired by any means, किसी भी तरीके से acquire की होगी. ये पहला डेफिनेंस हो गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यूएस एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में. अब हम दूसरा आते हैं कि ये तो हो गया एलिजिबिलिटी जो कंटेस्ट करने के लिए आ रहे हैं. फिर पोटस का इलेक्शन है, प्रेसिडेंट ऑफ यूएस इलेक्शन. तो इलेक्शन कौन करता है, तो इलेक्शन कैसा इलेक्शन है, पोटस का इलेक्शन और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन. मैं शॉर्ट में PUI लिख रहा हूं, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्शन, पहली बात एग्जामिनेशन में याद रखेंगे, पोटस का इलेक्शन एक इनडायरेक्ट इलेक्शन है. इनडायरेक्ट इलेक्शन, जब जनता डायरेक्टली इलेक्ट करती है तो डायरेक्ट इलेक्शन, जब किसी को जनता ने इलेक्ट किया है वो इलेक्ट कर रहा है तो उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्शन कैसा इलेक्शन है, ये भी इनडायरेक्ट इलेक्शन है, और प्रेसिडेंट ऑफ यूएस इलेक्शन भी इनडायरेक्ट इलेक्शन है. जल्दी में लोग गलती करते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्शन इज अ डायरेक्ट इलेक्शन, प्रेसिडेंट ऑफ यूएस इलेक्शन इज अ इनडायरेक्ट इलेक्शन. नो, प्रेसिडेंट ऑफ यूएस इलेक्शन इज आल्सो इनडायरेक्ट इलेक्शन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्शन इज आल्सो इनडायरेक्ट इलेक्शन. व्हाई? इट मींस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज. एक ग्रुप है इलेक्टोरल कॉलेज, उसको बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज. यहां पर भी सेम है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज. एक ग्रुप इलेक्ट करता है, उसको बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज. इस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन होता है, सो इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ 538 इलेक्टर्स. इट मींस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस को यूएस की जनता डायरेक्टली नहीं चुन रही है, प्रेसिडेंट ऑफ यूएस को यूएस के कुछ लोग इलेक्टर्स हैं जिन्हें जनता ने चुना है, वो इलेक्टर्स यहां पर चुन रहे हैं. हालांकि थोड़ा यूएस के केस में जो वोटिंग का प्रोसेस है वो स्लाइटली डिफरेंट. हियर देयर आर द टू टाइप ऑफ वोट्स टेक प्लेस, वन इज कॉल्ड द इलेक्टोरल वोट एंड वन इज कॉल्ड द पॉपुलर वोट. Popular vote decide that which presidential candidate would be having what many number of electoral vote, and the electoral votes are the one which are significant with respect to the president of US election. But from the prelim examination point of view, from the objective examination point of view, from the this multiple choice question examination point of view, कहीं भी अगर आप लिख रहे हैं तो वहां पर याद रखेंगे खास बात क्या है कि आप सिंपल पॉइंट याद रखेंगे. Here these 538 electors are the one who will be choosing the president of US. So India के केस में president of India is elected by an electoral college consisting of elected, not nominated, elected members of parliament, elected MPs and MLAs, MLAs from states, and from Union Territory of Delhi,
from Union Territory of Delhi and Puducherry. From Union Territory of Delhi and Puducherry. Under Article 54 of the Constitution of India, it is written clearly there. Under Article 54. Recently, we have seen that the Jammu and Kashmir has been created as a Union Territory, and Jammu and Kashmir has got the legislature also. So sometimes it is being seen as if the Jammu and Kashmir Legislative Assembly members automatically will be participating in the Jammu and Kashmir in the presidential election. But by that time, some changes may take place. Supreme Court judgment may come, or somebody may contest this in the court, or more clarity may come. But till then, remember, from the examination point of view, Article 54, what it reads simply is elected MPs and MLAs, because there's a larger question to be dealt separately. But here remember, कौन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट कर रहा है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. जब हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करते हैं तो मेंबर ऑफ लोकसभा and member of Rajya Sabha, members of Lok Sabha, members of Lok Sabha and members of Rajya Sabha, members of Lok Sabha and members of Rajya Sabha. So one point, remember, members of Lok Sabha, Rajya Sabha and members of State Legislative Assembly, members of Legislative Assembly, members of Legislative Assembly, members of Legislative Assembly कौन से? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ऊपर ही लिखा दिया मैंने, इलेक्टेड एमपीज एंड इलेक्टेड एमएलएस. लेकिन जब हम इलेक्टेड एमएलएस की बात करें तो यूनियन टेरिटरीज, यूटी मींस यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड एज वेल एज यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी, इन दोनों के जो एमएलएस हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं. तो आप याद रखें, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो यहाँ पर क्या हो गया, ये एक इलेक्टोरल कॉलेज, दैट इज कॉल्ड द इलेक्टोरल कॉलेज. यहाँ पर इलेक्टोरल कॉलेज में कौन है? दैट इज 538 इलेक्टर्स. ये जो 538 इलेक्टर्स हैं, ये कहां से आते हैं? इनमें से 100 इलेक्टर्स कहां से हैं? सेनेट से हैं. 100 इलेक्टर्स फ्रॉम सेनेट, 435 इलेक्टर्स फ्रॉम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव. क्या है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव? अभी बता रहा हूं. हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, दे आर रिप्रेजेंटिंग हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, दे आर रिप्रेजेंटिंग सेनेट, and three of those electors in electoral college represent the Washington DC. So 3 are representing Washington DC, the capital of US. Washington DC, also called as District of Columbia, named after the first president of US, that is George W. Washington. That's George Washington. That's, remember, George Washington, the first president of US, right? George Washington के नाम पर है George W. That is George Washington DC, District Columbia. W. Washington DC, District Columbia. So sometimes it is written, अभी भी DC बोलते हैं. So Senate, House of Representative, मेंबर्स ऑफ लोकसभा, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इलेक्टेड, और साथ ही साथ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी. पहली बात, एक थोड़ा सा पॉइंट याद रखेंगे, अगर हम यूएस की बात करते हैं तो यूएस कांग्रेस को अगर हम इंडिया में कंपेयर करते हैं तो इंडिया में हम नाम देते हैं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. लेकिन ये भी एक इस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाता है. प्लीज, नॉर्मली इन एग्जामिनेशन में थोड़े इजी क्वेश्चंस आते हैं, तो उस हिसाब से अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इन्फॉर्मेशन उतनी कवर नहीं करा रहा हूं, तो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड याद रखेंगे. पार्लियामेंट का मतलब क्या है? अंडर आर्टिकल 79 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अंडर आर्टिकल 79 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. अगर हम अंडर आर्टिकल 79 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो पार्लियामेंट का मतलब क्या है? पार्लियामेंट मींस प्रेसिडेंट प्लस राज्यसभा, प्रेसिडेंट प्लस राज्यसभा एंड प्लस लोकसभा, प्रेसिडेंट प्लस राज्यसभा एंड प्लस लोकसभा. तो याद रखेंगे 3 पार्ट है पार्लियामेंट के. प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, इज अ चैम्बर ऑफ पार्लियामेंट, इज वन सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट. सो पार्लियामेंट के 3 पार्ट हैं, प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा. राज्यसभा दैट इज कॉल्ड एज काउंसिल ऑफ स्टेट्स, एंड लोकसभा दैट इज हाउस ऑफ पीपल. प्लीज रिमेंबर, 1954 में ये नाम मिले थे, काउंसिल ऑफ स्टेट्स को राज्यसभा और हाउस ऑफ पीपल को लोकसभा. सो ओरिजिनली जब हम बात करते हैं तो ओरिजिनली क्या नाम थे? काउंसिल ऑफ स्टेट, या ओरिजिनली क्या नाम था? हाउस ऑफ पीपल. हाउस ऑफ पीपल को बाद में स्पीकर ऑफ लोकसभा ने नाम दिया लोकसभा, और राज्यसभा के चेयरपर्सन ने नाम दिया राज्यसभा. लेकिन याद रखना, शुरू में अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में देखें तो टर्म था काउंसिल ऑफ स्टेट एज वेल एज हाउस ऑफ पीपल. सो दैट इज प्रेसिडेंट प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा. यहाँ के मेंबर इन्हीं को बोलते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. सो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट या तो राज्यसभा के मेंबर है या लोकसभा के मेंबर है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना. प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया is not a member of parliament. ये पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया is a part of parliament.
is a part of parliament, is parliament is a chamber, is a chamber of parliament, आप ऐसे समझ सकते हो, is a chamber of parliament, पार्लियामेंट के एक चैम्बर के तौर पे कौन काम कर रहा है, वो प्रेसिडेंट काम कर रहा है। वैसे टेक्निकली स्पीकिंग हम बात करते हैं प्रेसिडेंट एक कंपोनेंट है पार्लियामेंट का, तो उसके लिए याद रखेंगे कि तीन है, एक हो गया लोकसभा, एक राज्यसभा और तीसरा प्रेसिडेंट। इसलिए प्रेसिडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, जो लोकसभा राज्यसभा के मेंबर है वो मेंबर है वहां पर। लेकिन जब हम यूएस के कांग्रेस की बात करते हैं तो यूएस कांग्रेस में वोटर्स इज नॉट a part of US कांग्रेस, यूएस कांग्रेस का पार्ट नहीं है। प्रेसिडेंट ऑफ यूएस कांग्रेस का पार्ट नहीं है। तो जब हम यूएस कांग्रेस की बात करते हैं तो यूएस कांग्रेस में भी दो ही हाउसेस हैं, वन इज कॉल्ड एज अ सेनेट एंड सेकंड इज कॉल्ड एज द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, टू हाउसेस। देखो यहाँ पे ये समझने के लिए एग्जामिनेशन के लिए लिखा हुआ है, मैं पहले ही बता चुका हूं, प्लीज रिमेंबर। जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे तो एक तरीके से, क्योंकि पर्सन है इसलिए उस तरीके से चैम्बर नहीं है, इसलिए नहीं तो याद रखना पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो पार्लियामेंट भी क्या है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज बाई कैमरल इन नेचर। जब भी बाई कैमरल लिखा होता है तो बाई कैमरल का मतलब है टू हाउसेस, जहां दो हाउसेस होते हैं उसको बोलते हैं बाय कैमरल। बट एक सिग्निफिकेंट पार्ट के तौर पे कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी है। सो एक पार्ट हिस्सा प्रेसिडेंट है, एक हिस्सा लोकसभा है, एक हिस्सा राज्यसभा है। क्योंकि जब हम हाउसेस की बात करते हैं तो हम बोल देते हैं कि दो हाउसेस कौन से, एक लोकसभा और राज्यसभा। उसी तरीके से यूएस की जो कांग्रेस है वो भी बाई कैमरल है। यूएस कांग्रेस इज ऑल्सो बाई कैमरल, टू हाउसेस। लेकिन उन दोनों हाउसेस के साथ यहां पर प्रेसिडेंट ऑफ यूएस इसका पार्ट नहीं। तो पहला डिफरेंस वहां पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और दूसरा क्या है, सेनेट। सेनेट को बोलते हैं अपर हाउस और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को बोलते हैं लोअर हाउस। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इज लोअर हाउस। इंडिया में राज्यसभा इज द अपर हाउस एंड लोकसभा इज द लोअर हाउस। एक खास बात ये है। अब पहले इन्हीं को देख लेते हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इन यूएस, ये कैसा हाउस है, लोअर हाउस है, दिस इज लोअर हाउस। इसके अलावा सेनेट कैसा हाउस है, सेनेट इज अ अपर हाउस, ये अपर हाउस है। अगर इसके हिसाब से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास है लोकसभा एंड एज वेल एज राज्यसभा, लोकसभा एंड राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट, लोकसभा हाउस ऑफ पीपल। पहली बात याद रखिए, लोअर हाउस, अपर हाउस। लोकसभा को बोलते हैं लोअर हाउस, इसको बोलते हैं अपर हाउस। अब क्या बता रहा हूं यहाँ पे, सीट्स अलोकेटेड। अगर हम सीट्स की बात करेंगे, अलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। यूएस में जब हम बात कर रहे हैं तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा, उसकी सीट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में ज्यादा। एग्जांपल के लिए मैक्सिमम सीट्स किसकी हैं, कैलिफोर्निया। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा है कि कैलिफोर्निया इज द मोस्ट पॉपुलर स्टेट ऑफ यूएस, इसलिए कैलिफोर्निया की 53 सीट्स हैं, 53 सीट्स। लेकिन मिनिमम कम से कम एक सीट होगी जो स्टेट्स को मिलेगी, अगर उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है तब भी मिनिमम 1 सीट। जैसे एग्जांपल के लिए मिनिमम 1 सीट, कम से कम 1 सीट होगी, और बाकी फिर अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो उसके बेसिस पर ज्यादा सीट। जैसे एग्जांपल के लिए अलास्का है, वायोमिंग है, नॉर्थ डकोटा है, साउथ डकोटा है, राइट। तो ये जो यहाँ पे जो उनके पास सीट अवेलेबल है वो एक ही सीट है, लेकिन कैलिफोर्निया हैज गॉट द 53 सीट्स। लेकिन जो सेनेट है यूएस का, सेनेट की खास बात क्या है, each state has 2 seats। अभी रिसेंटली राज्यसभा को लेकर के इस तरीके का प्रपोजल आया था। जैसे अगर हम इंडिया में देखेंगे तो राज्यसभा और लोकसभा यहाँ दोनों ही केसेस में ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। तो ये आता रहता है डिमांड की राज्यसभा को रीमेम करने की जरूरत है। कुछ छोटे स्टेट्स हैं जिनका कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, बहुत कम रिप्रेजेंटेशन नहीं है, मतलब उनके पास एक सीट है जैसे, और उतना रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जैसे यूपी है, यूपी हैज गॉट 31 सीट्स, तो सीट्स ज्यादा हैं, तो इसको लेकर के समटाइम्स देयर इज अ प्रॉब्लम कंप्लेंट फ्रॉम द स्मॉलर स्टेट। एक खास बात याद रखेंगे, लोकसभा में भी सीट्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, राज्यसभा में भी सीट्स ऑन द बेसिस पॉपुलेशन। जैसे स्टेट में देखेंगे तो मैक्सिमम सीट्स लोकसभा एंड एज वेल एज राज्यसभा में किसको अवेलेबल है, उत्तर प्रदेश हैज गॉट द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स इन बोथ इन लोकसभा एज वेल एज इन द राज्यसभा। सो व्हाट इज ओवर हियर इज यूपी। जैसे यहाँ पे 80 सीट्स हैं, 80 सीट्स कहां पर, 80 सीट्स इन लोकसभा, 80 सीट हैं लोकसभा में, या 31 सीट्स इन राज्यसभा।
31 सीट्स इन राज्यसभा, तो सबसे ज्यादा। लेकिन अगर कैलिफोर्निया की बात करेंगे तो सेनेट, कैलिफोर्निया को सेनेट में कितनी सीट्स अवेलेबल है? कैलिफोर्निया को सीट्स अवेलेबल है 2। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि कमला हैरिस कहां से सेनेटर हैं? कैलिफोर्निया से। तो अगर क्वेश्चन आया कि प्रेसिडेंट ऑफ यूएस इलेक्शन में कैलिफोर्निया के कितने वोट्स हैं, तो हमने टोटल देखा है कि कितने टोटल वोट्स हैं, 538 में से 100 वोट कहां से आ रहे हैं? सेनेट से। 435 कहां से आएंगे? 435 विल बी कमिंग फ्रॉम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड 3 विल बी कमिंग फ्रॉम वाशिंगटन डीसी। तो ये तो साफ लिखा ही है, वाशिंगटन डीसी। यहां पर सेनेट में हमने देखा हर स्टेट को कितना अवेलेबल है? 2 सीट्स। इसका अंदर यूएस में टोटल कितने स्टेट्स हैं? 50। ये जो 50 स्टेट्स हैं मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे तो 100। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में अलग अलग है। और यहां पर हमने देखा है कैलिफोर्निया के पास कितनी सीट्स अवेलेबल है? कैलिफोर्निया हैज गॉट टोटल 53 इलेक्टर्स इन द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस इलेक्टोरल कॉलेज। इट मींस total California has got how many number of electoral votes in the president of US election? That is 53 and 2, that is 55, that is maximum among the states. So that's the one reason California senator, that's a Kamala Harris. Apart from this, she is a person of Indian origin, so that's a one especially his mother from originally from India. So that apart from what other political consideration, we're not talking about that. So please remember, as of now, stay factual, stay with respect to the examination requirement only. Please, पूरी क्लासेस में मैं बहुत ज्यादा यहाँ वहाँ की बातें नहीं करूंगा, हम सिर्फ उस चीज पर फोकस करेंगे जो हमारी एग्जामिनेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हेल्प करेगा. So our entire focus will be mainly on those areas. So one remember is the difference over here is president of US and president of इंडिया. हमने देखा इलेक्टोरल कॉलेज दोनों में इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है, इलेक्टोरल कॉलेज है. यहाँ पर इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर कहां से आ रहे हैं? वो हमने देखा इलेक्टेड एमपीज, इलेक्टेड एमएलएस. यहाँ पर कहां से आ रहे हैं? फ्रॉम द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, सेनेट एज वेल एज 3 फ्रॉम द वाशिंगटन डीसी. वाशिंगटन डीसी इज अ फेडरल administered district, that is a federally administered area. यूएस में जो 50 स्टेट है उनमें से वाशिंगटन डीसी स्टेट नहीं है. सो प्लीज रिमेंबर, अगर यूएसए की बात करेंगे तो यूएस में टोटल कितने स्टेट्स हैं? टोटल 50 स्टेट्स, 50 स्टेट्स हैं, 50 स्टेट्स है. नंबर 1, टोटल 50 स्टेट्स. ओरिजिनली कितने स्टेट्स थे? ओरिजिनली 13 स्टेट्स. सबसे शुरू में 13 स्टेट थे, फिर धीरे धीरे बढ़ते चले गए. हमने देखा 50वां स्टेट, 50th स्टेट कौन सा है? 50th स्टेट इज हवाई. हवाई इज द 50th स्टेट. और खास बात याद रखेंगे, यूएस का फ्लैग कभी आपने देखा हो तो यूएस के फ्लैग में, अगर यूएस फ्लैग की बात करेंगे तो यूएस के फ्लैग में यहाँ टॉप लेफ्ट कॉर्नर में 50 स्टार हैं. ये जो 50 स्टार हैं ये क्या बता रहे हैं? ये 50 स्टेट की बात कर रहे हैं. 50 स्टेट्स की बात करें. और यहाँ पर आप देखेंगे तो पट्टियां बनी हुई हैं, रेड व्हाइट, इस तरीके से रेड व्हाइट रेड, ऐसी 13 पट्टियां बनी हुई. जो 13 स्ट्राइप्स हैं ये क्या बता रहे हैं? ये बता रही हैं ओरिजिनल स्टेट्स. जब यूएस आया, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, तो वहां पर कितने स्टेट से? 13 स्टेट से. डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस भी आ जाता है कभी कभी एग्जामिनेशन में. डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, व्हेन वी से डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, इट मींस दैट इज 4th ऑफ जुलाई 1776. ये भी एग्जामिनेशन के क्वेश्चन है. इंडिपेंडेंस डे एक तरीके का यूएस का इंडिपेंडेंस डे, दैट इज 4th ऑफ जुलाई 1776. डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की ड्राफ्टिंग, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, ड्राफ्टेड बाय प्रिंसिपल. जो मेन ड्राफ्टिंग की बात करेंगे तो फिर वहां पर थॉमस जेफरसन का नाम याद रखना. एग्जांपल के लिए जब हम बात करते हैं इंडिया की ड्राफ्टिंग कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन कौन थे? भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर. सो द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन ड्राफ्टिंग कमेटी, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, पढ़ने का तरीका बहुत सिंपल, जितनी ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन पढ़ सकें, कनेक्ट कर सकें इंफॉर्मेशन के साथ, अल्टीमेटली एग्जामिनेशन के क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए. ड्राफ्टिंग कमेटी का जो चेयरपर्सन थे वो चेयरपर्सन दैट इज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. सो बी आर अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर, ये ड्राफ्टिंग कमेटी हेड कर रहे थे. इसीलिए बी आर अंबेडकर को बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. व्हाई ही इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? Because he was the one who headed the drafting committee of the Constituent Assembly of India. That's a, however, remember examination point of view, if we talk about the original draft of the Constitution, original draft of Indian Constitution, original draft or the first draft of Indian Constitution. First draft of Indian Constitution was prepared by. First draft of Indian Constitution was prepared by whom? It was prepared by B.N. Rao. B.N. Rao, who was also the legal advisor to the Constituent Assembly of India. ये सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में. Legal advisor to Constituent Assembly of India. Legal advisor to Constituent Assembly of
इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जिसको काम दिया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, उनके एक लीगल एडवाइजर थे BN राव। BN राव की एक और खास बात याद रखेंगे, BN राव, इट इज BN राव, BN राव की खास बात क्या याद रखेंगे, बेनेगल नरसिंह राव, BN राव इज ऑल्सो रिमेंबर, ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, एंड फर्स्ट इंडियन टू become or first Indian to represent India as president of Security Council, जो प्रेसिडेंट ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल है वो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स में से इलेक्ट होता है 1 महीने के लिए। एक तरीके से वो कंट्री होती है, लेकिन कंट्री को जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है वो पर्सन, तो वहां पर उस समय BN राव थे। एंड BN राव, इसलिए नॉर्मल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन लिखा रहता है फर्स्ट इंडियन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। एक्चुअली सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट जो है वो पर्सन नहीं, वो कंट्री है। और कंट्री 1 महीने के लिए जो मेंबर है 15 मेंबर, 5 परमानेंट, 10 नॉन परमानेंट मेंबर, आउट ऑफ दोस 15 मेंबर्स वन ऑफ द मेंबर्स गेट्स elected as a president of the Security Council in an alphabetical order for 1 calendar month. And when India was member there, BN Rao, who was a legal advisor to the Constitution of India, he prepared the original draft of the Constitution of India. Later on, the Constituent Assembly appointed a drafting committee, and this drafting committee was headed by B.R. Ambedkar. That's why he is famously called as the father of Indian Constitution. Now come back to this, what we are talking about. अगर वहां से यहाँ देखेंगे तो Declaration of Independence of US, it was drafted by Thomas Jefferson, who became the 3rd president of US, third president of US. पहले POTUS कौन थे? The first president of US, that was George Washington. अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा है जॉर्ज वॉशिंगटन। इन्हीं के नाम पर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया यूएस की जो है उसका नाम बदल के किया है वॉशिंगटन DC, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, उसे बोलते हैं वॉशिंगटन DC। दैट इज फर्स्ट POTUS। सेकंड POTUS was John Adams। और थर्ड कौन थे? थॉमस जेफरसन। 44th कौन थे? बैरक ओबामा। 45th कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। और अगर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा बने तो उनको 45th ही बोलेंगे, लेकिन अगर जो बाइडेन बनते हैं तो फिर उनको बोलेंगे 46। 59th इलेक्शन होने जा रहा है। पिछला जो इलेक्शन हुआ था 58th इलेक्शन था, लेकिन एक पर्सन एक बार से ज्यादा प्रेसिडेंट हो सकता है। कई बार यूएस में ऐसा रहा है, यूएस में कोई भी पर्सन 2 बार से ज्यादा प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है। अब पहले 22nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इन यूएस, उससे पहले ऐसी लिमिटेशन नहीं थी, इसलिए एक पर्सन ऐसे हैं जो यूएस के प्रेसिडेंट 4 बार बने हैं, दैट इज फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। अभी बता रहा हूं मैं, शायद हमने क्लास में कहीं देखा होगा पहले, बट फिर से याद रखेंगे। फर्स्ट POTUS जॉर्ज वॉशिंगटन, सेकंड POTUS इज जॉन एडम्स। तो एक वापस आएंगे, 4 जुलाई 1776 याद रखेंगे, 4 जुलाई 1776, 13 ओरिजिनल स्टेट, 50 स्टार्स याद रखेंगे, रेड एंड व्हाइट याद रखेंगे, 50वां स्टेट हवाई, 13 ओरिजिनल स्टेट्स, टोटल यूएस में जो है वो 50 स्टेट्स। हमने ये देखा ब्रीफ में प्रेसिडेंट ऑफ यूएस इलेक्शन के बारे में। सो प्रेसिडेंट ऑफ यूएस इज इलेक्टेड बाय an electoral college consisting of 538 members, 100 from Senate, 435 from House of Representatives, and 3 from the Washington DC. Washington DC is not one of the 50 states of US, right? That's one, remember, is election of the president of US. अब कुछ दूसरे फैक्ट्स की बात करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ यूएस इलेक्शन से। तो एक तो जो प्रेसिडेंट ऑफ यूएस विजिटेड इंडिया, वहां से क्वेश्चन आ जाता है प्रेसिडेंट ऑफ यूएस हु हैव विजिटेड इंडिया, जिन्होंने इंडिया को विजिट किया है। सबसे पहले POTUS जिन्होंने इंडिया को विजिट किया है वो है ड्वाइट डी आइगनहावर। Dwight D. Eisenhower also is the famous one who gave the idea of Atoms for Peace Commission. Atoms for Peace Commission को ही बाद में बोलते हैं later became International Atomic Energy Agency। मैं पहले भी बता चुका हूं, इंफॉर्मेशन को लिंक करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम कम टाइम में और रिलेवेंट एग्जामिनेशन से रिलेवेंट जो इंफॉर्मेशन है वो हम पढ़ सकते हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अभी ईरान को लेकर के अभी हमने देखा है विद रिस्पेक्ट टू रशिया जार बॉम्ब की जो वीडियो रिलीज की है, या किसी न किसी वजह से न्यूज में रहता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, शॉर्ट में इसी को बोलते हैं IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरनेशनल न्यूक्लियर वॉचडॉग, इसी को बोलते हैं इंटरनेशनल न्यूक्लियर वॉचडॉग।
किसे कहते हैं? इसी को कहते हैं IAEA. Question: Who among the following is called as, which of the following agency is called as International Atomic Energy? Which of the following agency is called as International Nuclear Watchdog? Answer is International Atomic Energy Agency, IAEA, which was later officially established 1957, and it is having its headquarters in Vienna. Vienna. It is having its headquarters in Vienna. Vienna. This is the capital of Austria. AAUSTRIA. Austria. Capital Vienna. That is International Atomic Energy Agency. Is India a member of International Atomic Energy Agency? Yes, India is a member of International Atomic Energy Agency. छोटा सा part IAEA. This is International Atomic Energy Agency. Dwight D. Eisenhower. ये है. This Dwight D. Eisenhower also popular for he established NASA. नासा का फुल फॉर्म आ जाता है इस एग्जामिनेशन में, कभी कभी गलती करते हैं कुछ स्टूडेंट इसमें. नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस नॉट एजेंसी, स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, that is NASA. So this is one, Dwight D. Eisenhower 1. Number two, ये जो World War II था तो वहां पर डिफेंस फोर्सेस हेडेड बाय Dwight D. Eisenhower. So very popular person, Dwight D. Eisenhower. Number 1, सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ यूएस जिन्होंने इंडिया को विजिट किया है. उसके बाद में नंबर 2 फिर है रिचर्ड निक्सन की खास बात क्या है? रिचर्ड निक्सन की खास बात यह है कि ही विजिटेड फॉर शॉर्टेस्ट टेन्योर, विजिटेड इंडिया फॉर शॉर्टेस्ट टेन्योर. जितने भी प्रेसिडेंट ऑफ यूएस इंडिया आए हैं उनमें से सबसे कम टाइम के लिए जो आए हैं वो है रिचर्ड निक्सन. और खास बात, रिचर्ड निक्सन तब आए थे जब इंडिया के जो प्रेसिडेंट का काम देख रहे थे वो एक एक्टिंग प्रेसिडेंट उस समय देख रहे थे, मोहम्मद हिदायतुल्लाह इज द ओनली फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हु आल्सो सर्व्ड as an acting president of India, and as well as he served as later on as a vice president of India. So Richard Nixon की visit हुई थी, visited India for the shortest tenure. Richard Nixon is the only POTUS to resign. ये कई बार आ जाता है एग्जामिनेशन में, only POTUS to resign. आज तक किसी भी प्रेसिडेंट ऑफ यूएस को क्या हटाया गया है ऑफिस से? हटाया का मतलब रिमूवल. इंपीचमेंट तो हुआ है, मैं भी लिखा दूंगा इंपीचमेंट शॉर्ट में. उसमें यूएस में और इंडिया में इंपीचमेंट अलग तरीके से यूज करते हैं. यूएस में इंपीचमेंट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव करता है और रिमूवल फ्रॉम ऑफिस वो होता है फ्रॉम सेनेट. लेकिन आज तक कोई भी यूएस का प्रेसिडेंट हटाया नहीं गया है, इंपीचमेंट जरूर हुआ है. इंपीचमेंट हैज टेकन प्लेस बट हटाया नहीं गया. जैसे भी हमने रिसेंटली देखा था, इंपीचमेंट हुआ था ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, उनका इंपीचमेंट तो हुआ बट रिमूवल फ्रॉम ऑफिस नहीं, वो एक्विटल हो गया फिर बाद में. सो दिस इज रिमेंबर रिचर्ड निक्सन ओनली पोटस टू रिजाइन. क्यों रिजाइन किया था? ड्यू टू यहाँ पर एक स्कैंडल हुआ, उसको बोलते हैं वाटरगेट स्कैंडल. क्वेश्चन आता है Watergate scandal is associated with or because which of the following reason Richard Nixon became the only president to resign from office? That is Richard Nixon 2. फिर इसके बाद में नंबर 3 is popular, that's a Jimmy Carter. तो इसके बाद में फिर Jimmy Carter. नंबर 4 आप जानते ही हैं, that is Bill Clinton. नंबर 4 अगेन पॉपुलर वन. इसके बाद में फिर बिल क्लिंटन के बाद में ऑल्सो यू नो द पॉपुलर नेम, दैट इज जॉर्ज डब्ल्यू बुश. उसके बाद में फिर 6 नंबर पे हैं बैरक हुसैन बैरक ओबामा ऑल्सो फर्स्ट POTUS to become chief guest on Republic Day of India. इंडिया के रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट बनने वाले पहले फर्स्ट POTUS टू बिकम दिस चीफ गेस्ट ऑन रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, दैट इज बैरक ओबामा. तो एक वापस करंट अफेयर्स का एक छोटा सा क्वेश्चन क्या है कि अगर हम रिपब्लिक डे 2020 की बात करें, रिपब्लिक डे दैट इज 26 ऑफ जनवरी 2020, क्वेश्चन आ जाएगा इस दिन चीफ गेस्ट कौन था? चीफ गेस्ट एक परंपरा है कि चीफ गेस्ट बुलाते हैं कई बार, वो एक या एक से ज्यादा लोग हो सकते हैं. चीफ गेस्ट रिपब्लिक डे 2020 इज जायर बोल्सोनारो, राइट? दिस इज बोल्सोनारो. ये कहां के प्रेसिडेंट हैं? ही इज अ प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील. सो जायर बोल्सोनारो, he is a president. Bolsonaro, NARO.
बोल्सोनारो, ही इज अ प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील, ये प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील है। प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील, जो अभी कोविड के टाइम पे काफी न्यूज में थे बिकॉज ऑफ हिज स्टेटमेंट्स एंड दैट नॉट वेयरिंग द मास्क एटसेट्रा, एंड नंबर ऑफ प्रोटेस्ट्स आर गोइंग ऑन इन द ब्राजील, सो दैट इज रिपब्लिक डे 2020। और अगर 2019 की बात करेंगे, रिपब्लिक डे 2019, तो वो थे प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, दिस प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, दैट इज सिरिल रामाफोसा, this is Cyril Ramaphosa, Cyril Ramaphosa, the president of South Africa. He was the chief guest in 2019. और अगर हम 2018 की बात करें, 2018 की बात करें, तो यहाँ पर in case of the 2018, that was ASEAN nations heads, ASEAN nations heads, ये ASEAN nations head थे। ASEAN nations head, ASEAN क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। कितने हैं यहाँ पर? 10 कंट्रीज हैं इसमें, आसियान 10 कंट्रीज, आसियान 10 कंट्रीज, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान, कभी कभी नाम आ जाता है आसियान, क्या है आसियान? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर? 10 कंट्रीज। आसियान, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? दैट इज इन जकार्ता। जकार्ता कहाँ पर है? जकार्ता इज अ प्लेस इन इंडोनेशिया, दिस इज इन इंडोनेशिया, जकार्ता। आसियान 10 कंट्रीज, वैसे तो नाम बता सकता हूं मैं आपको। 10 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? ये है म्यांमार, इसके अलावा लाओस, थाईलैंड। ये क्वेश्चन आ जाता है इनमें से कौन सा आसियान का मेंबर नहीं है या आसियान का मेंबर है? म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया एंड वियतनाम। म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम। इसके अलावा मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस। तो क्या याद रखेंगे? ये वो 10 कंट्रीज हैं जो आसियान के मेंबर हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इंडिया आसियान का मेंबर नहीं है। तो एक तो ये खास बात फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। तो कितने प्रेसिडेंट ऑफ यूएस इंडिया आए हैं? तो हमने देखा 1 2 3। फर्स्ट कौन था? जॉइट डी आइगनहावर, सेकंड रिचर्ड निक्सन, थर्ड जिमी कार्टर, फोर्थ बिल क्लिंटन एंड फिफ्थ फिर हमने देखा जॉर्ज डब्ल्यू बुश। फिर 6वें नंबर पर बैरक ओबामा और 7वें जो इंडिया विजिट किया था वो है डोनाल्ड ट्रंप। दिस इज डोनाल्ड ट्रंप इज अ 7th यूएस प्रेसिडेंट टू विजिट इंडिया। तो 7 यूएस प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने इंडिया को विजिट किया है। तो एक तो क्वेश्चन इससे आता है। इसके अलावा अगर हम क्वेश्चन को देखेंगे तो चूंकि डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे हैं तो हमने लास्ट टाइम देखा था हाउडी मोदी एक इवेंट हुआ था। तो हाउडी मोदी का इवेंट कहां पर हुआ था? हाउ डू यू डू मोदी? दैट इवेंट हैज टेकन प्लेस वेयर? ह्यूस्टन। दिस इज ह्यूस्टन, टेक्सास। So that event has taken place. So question examination point of view से that is also one. इसके अलावा एक और क्वेश्चन है कि जो पोटस हैं यूएस के पोटस, प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, जिनका असैसिनेशन हुआ है, असैसिनेशन जिनकी हत्या हुई है, how many president of US have been assassinated? Who among the following has been assassinated or not? So that's remember. यहाँ पर एक तो नाम याद रखेंगे फेमस अब्राहम लिंकन, जिनका गेटिसबर्ग एड्रेस था और उसमें उन्होंने कहा था डेमोक्रेसी फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, ऐसी सरकार। सो अब्राहम लिंकन। इसके अलावा जेम्स ए गारफील्ड, दिस इज फेमस अगेन। एक अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा था इनके टाइम पे, ये है। इसके अलावा विलियम मैकिनली की खास बात क्या थी? इनकी डेथ हुई और इनके बाद में फिर जो बने प्रेसिडेंट रिप्लेसिंग हिम, इनको रिप्लेस करने के बाद में रिप्लेसिंग हिम जो प्रेसिडेंट बने वो थे थियोडोर रूजवेल्ट। ये प्रेसिडेंट बने थियोडोर रूजवेल्ट। और थियोडोर रूजवेल्ट की खास बात क्या है? थियोडोर रूजवेल्ट इज द फर्स्ट पोटस टू गेट नोबेल प्राइज। जिनको नोबेल प्राइज, 4 प्रेसिडेंट ऑफ यूएस ऐसे हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है, उनमें से पहले है थियोडोर रूजवेल्ट। और खास बात थियोडोर रूजवेल्ट की क्या है? ऑल्सो कॉल्ड एज टेडी। आपकी जानकारी के लिए बता दो कि जो टेडी बियर है, टेडी बियर
कभी आपने गिफ्ट वगैरह कभी किसी को देते हैं तो वो जो टेडी बियर बोलते हैं, दिस टेडी बियर इज नेम्ड आफ्टर द फेमस टेडी, एंड टेडी दैट इज अ टेडी वाज अ निकनेम ऑफ थियोडोर रूजवेल्ट, दैट्स अ काइंड ऑफ अ निकनेम, द टेडी बियर स्पेशली जर्मनी दैट काइंड ऑफ प्रोपेगेटेड देयर, वो इन्हीं के नाम पर है थियोडोर रूजवेल्ट। क्या खास बात है थियोडोर रूजवेल्ट की? थियोडोर रूजवेल्ट इज the youngest to assume presidency, youngest to assume presidency, सबसे यंग प्रेसिडेंट जो बने हैं यूएस के वो है थियोडोर रूजवेल्ट। अभी मैंने आपको बताया था ओल्डेस्ट टू अज्यूम प्रेसिडेंसी इज डोनाल्ड ट्रम्प, यंगेस्ट टू अज्यूम प्रेसिडेंसी, बट ये इलेक्ट नहीं हुए थे एज ए प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट की डेथ के बाद में प्रेसिडेंट बने हैं। तो अगर यंगेस्ट टू गेट इलेक्टेड देखेंगे तो वो जो चौथा असैसिनेटेड प्रेसिडेंट है, तो चौथा जिनका असैसिनेशन हुआ है वो फेमस जॉन एफ कैनेडी। तो जब जॉन एफ कैनेडी की बात करेंगे तो क्या है, दिस इज यंगेस्ट पोटस टू गेट इलेक्टेड, यंगेस्ट पोटस टू गेट इलेक्टेड, सबसे यंग प्रेसिडेंट ऑफ यूएस जिनका इलेक्शन प्रेसिडेंट ऑफ यूएस के तौर पे हुआ है वो पॉपुलर जॉन एफ कैनेडी, दैट्स जॉन एफ कैनेडी, JFK, also इन्हीं को बोलते हैं JFK, famous John F. Kennedy. So 4 presidents of US who died in office were assassinated here: Abraham Lincoln, James E. Garfield, William McKinley, and as well as John F. कैनेडी। एक तो ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है, हमने देखा प्रेसिडेंट ऑफ यूएस वो प्रेसिडेंट ऑफ यूएस जिन्होंने इंडिया को विजिट किया है। इसके अलावा देखो क्या है, यूएस के इलेक्शन में एक और आता है, जब प्रेसिडेंट ऑफ यूएस इलेक्शन होता है तो यहाँ पर 2 तरीके के वोट होते हैं, एक जनता के वोट को भी काउंट करते हैं, उसको बोलते हैं पॉपुलर वोट। पॉपुलर वोट का मतलब है टोटल वोट ऑफ पीपल इन फेवर ऑफ पोटस कैंडिडेट, तो वो कितने टोटल वोट मिले हैं उनको बोलते हैं पॉपुलर वोट। और दूसरा हमने देखा है कौन सा वोट होता है, इलेक्टोरल वोट। ये इलेक्टोरल वोट का मतलब है दैट फ्रॉम इलेक्टोरल कॉलेज वाला, ये एक ही पार्टी को दोनों ही ज्यादा मिले ऐसा जरूरी नहीं, ज्यादातर ऐसा होता है कि पॉपुलर वोट भी मिलता है, इलेक्टोरल वोट भी मिलता है, लेकिन जो प्रेसिडेंट ऑफ यूएस का इलेक्शन डिसाइड होता है वो कौन डिसाइड करता है, इलेक्टोरल वोट डिसाइड करता है। सो दिस इलेक्टोरल वोट डिटरमिन्स पोटस, it determines the election of voters, तो इलेक्शन ऑफ वोटर्स के लिए जो फाइनल है वो कौन है, वो ये है, दैट इज इलेक्टोरल वोट। तो ऐसे कुछ प्रेसिडेंट ऑफ यूएस हैं जिनको पॉपुलर वोट तो नहीं मिला लेकिन इलेक्टोरल वोट मिला है, तो उनमें से एग्जांपल पोटस नॉट सिक्योरिंग पॉपुलर वोट। कितने प्रेसिडेंट ऑफ यूएस ऐसे हैं जिनको पॉपुलर वोट नहीं मिला है लेकिन फिर भी प्रेसिडेंट ऑफ यूएस बने हैं, तो वो राइट 5 हैं। उनमें से सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो वेरी फेमस दैट इज जॉन क्विंसी एडम्स, राइट, तो जॉन क्विंसी एडम्स, एक तो ये फेमस जॉन क्विंसी एडम्स नंबर 1, 5 ऐसे हैं, नंबर 1, नंबर 2 दैट वाज जॉन क्विंसी एडम्स। इसके अलावा रदरफोर्ड बी हैस, अगर हम देखेंगे तो रदरफोर्ड बी हैस, और इसके अलावा नंबर 3 इज बेंजामिन हैरिसन, एंड इसके अलावा देखेंगे तो फिर 4th इज पॉपुलर दैट इज जॉर्ज डब्ल्यू बुश, और फाइनली लास्ट हमने जो देखा है वो है प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, अभी इनकमेंट प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, एंड दैट इज डोनाल्ड ट्रम्प। 5, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 5 प्रेसिडेंट ऐसे हैं जिनको पॉपुलर वोट नहीं मिला है, उसके बावजूद भी वो प्रेसिडेंट ऑफ यूएस बने हैं। दैट्स रिमेंबर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस election. I hope some of the informations you have got from here. दस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस इलेक्शन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्शन, हमने दोनों को थोड़ा कंबाइन किया था। तो फिर से याद रखेंगे प्रेसिडेंट ऑफ यूएस का इलेक्शन जो चल रहा है वो 59th नंबर का इलेक्शन होना है, जो 59th नंबर का इलेक्शन है। इसमें जो प्रेसिडेंट ऑफ यूएस अभी इस समय काम कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प, ही इज अ 45th प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, और वो किस पार्टी को बिलोंग करते हैं, ही बिलोंग टू द रिपब्लिकन पार्टी। दूसरी जो मेजर पार्टी है यूएस में दैट इज डेमोक्रेटिक पार्टी। दो पार्टीज, डेमोक्रेटिक पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी, लेकिन सिर्फ दो ही पार्टी नहीं और भी बहुत सारी पार्टीज भी है। लेकिन फिर भी क्या यूएस में 2 पार्टी सिस्टम है? यस। इसका मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय 2 पार्टी सिस्टम? इट मींस राइट in the past we have seen 2 major parties, 2 parties dominating the power sharing, and that's why it's called as a
टू पार्टी एग्रीमेंट। जैसे अगर आप देखते हैं कई इंडियन स्टेट्स हैं जहां पर हम बोलते हैं एक तरीके से टू पार्टी रूल है, तो टू पार्टी का मतलब कभी ये पार्टी कभी वो पार्टी, उसको हम बोलते हैं टू पार्टी सिस्टम। सो ये है प्रेसिडेंट ऑफ यूएस के बारे में कुछ खास बातें। और दूसरी बात, अगर हम प्रेसिडेंट ऑफ यूएस को देखें तो प्रेसिडेंट ऑफ यूएस के केस में भी वन पॉइंट याद रखेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ यूएस नंबर 1 इज सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस। सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस, सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। प्रेसिडेंट ऑफ यूएस इज द हेड ऑफ स्टेट, ये हेड ऑफ द स्टेट भी है, हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट। एंड नंबर 3 इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट, head of the government and head of the state, ये दोनों प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, हेड ऑफ द स्टेट एज वेल एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के केस में प्लीज रिमेंबर, इंडिया के केस में सुप्रीम कमांडर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस, सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस, सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस कौन है? वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हेड ऑफ द स्टेट है, यस, हेड ऑफ द स्टेट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बट प्रैक्टिकली हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? प्रैक्टिकली, ये प्रैक्टिकली वर्ड याद रखेंगे, प्रैक्टिकली हेड ऑफ द गवर्नमेंट, प्रैक्टिकली इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं डी फैक्टो। दो वर्ड हम यूज करते हैं, एक होता है डी जोर और दूसरा है डी फैक्टो। डी जोर यहाँ पर हम बात करें लीगल पोजीशन, लीगली, ऑफिशियली हम बात कर रहे हैं ये, तो इसके हिसाब से डी जोर और दूसरा क्या है? डी फैक्टो। डी फैक्टो का मतलब प्रैक्टिकली हम बात बोल रहे हैं, प्रैक्टिकली देखें, अगर इन इफेक्ट देखें, प्रैक्टिकली देखें, इन इफेक्ट देखें, इन रियलिटी देखें, ऑन ग्राउंड सिचुएशन देखें, या फैक्ट क्या कह रहा है, हकीकत क्या कह रहा है, उसके हिसाब से देखेंगे डी फैक्टो। तो एक्चुअल में क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को रीड करेंगे और उसके हिसाब से लीगल पोजीशन देखेंगे, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो एग्जीक्यूटिव पावर है, executive power is vested, executive power of union government, तो सरकार चलाने की जो यूनियन गवर्नमेंट की पावर है वो किसमें है? वेस्टेड है, वेस्टेड इन नॉट प्राइम मिनिस्टर, इट इज वेस्टेड इन प्रेसिडेंट। तो क्वेश्चन कभी कभी सीधा आता है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट इज वेस्टेड इन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन प्रैक्टिकली, क्योंकि एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 74, और आर्टिकल 74 कहता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी एडेड एंड एडवाइज्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर व्हिच इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपने काम करने के लिए जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के डिसीजंस होंगे, वो डिसीजन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसकी सलाह पर लेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर। तो एक्चुअल में देखा जाए तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जो डिसीजन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इन डिसीजन के लिए टू एड एंड एडवाइस, उनकी एड और एडवाइस के लिए, यहाँ पे एडवाइस के लिए कौन है? यहाँ पर है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड है प्राइम मिनिस्टर। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन है? चीफ मिनिस्टर। इसलिए प्रैक्टिकली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर नहीं, प्रैक्टिकली पावर है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लेकिन आर्टिकल 75 कहता है कि प्राइम मिनिस्टर shall be appointed by president and on the recommendation of the prime minister other minister shall be appointed by president। it means कि प्राइम मिनिस्टर ही बताएगा कि कौन मिनिस्टर बनेगा, कौन मिनिस्टर नहीं बनेगा। तो सही रियल पावर किसके पास आ जाती है? प्राइम मिनिस्टर के पास। इसीलिए एग्जामिनेशन में क्वेश्चन दो तरीके से याद रखना। अगर ऐसा लिखा हुआ है कि इंडिया में डी फैक्टो हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर है, यस, प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द स्टेट, वो भी सही है। हालांकि टेक्निकली सही नहीं है, लेकिन एग्जामिनेशन के हिसाब से सही है। इंडिया का हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट अगर लीगली देखा जाए, कॉन्स्टिट्यूशनली देखा जाए, तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी कौन है? प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट को उनके काम की जो कैसे डिसीजन होंगे, उस डिसीजन को के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है जिनका हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली बात करते हैं तो प्रैक्टिकली इंडिया का हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? वो प्रैक्टिकली डी फैक्टो दैट इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। दैट्स वन पॉइंट रिमेंबर। तो इसलिए हम क्या बात करेंगे? डी फैक्टो हेड ऑफ द गवर्नमेंट। डी फैक्टो हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है? डी फैक्टो हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज प्राइम मिनिस्टर। डी जोर हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज प्रेसिडेंट। तो ये सिचुएशनल डिफरेंसेस है। यहाँ पे इनकी पोजीशन क्या है? यहाँ पर डी जो डी फैक्टो हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? प्रेसिडेंट ही है। हेड ऑफ द स्टेट ये भी सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ यूएस है। प्लीज रिमेंबर, जैसे प्रेसिडेंट को इंडिया में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इंपीच किया जा सकता है, वैसे ही प्रेसिडेंट ऑफ यूएस को भी इंपीच किया जा सकता है। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ यूएस का इंपीचमेंट और रिमूवल दो प्रोसेस होते हैं। इंपीचमेंट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से होता है और रिमूवल फ्रॉम ऑफिस वो कहां से होता है? सेनेट से होता है। सेनेट इज अ अपर हाउस। अगर वहां पर एक्विट हो गया है तो इसका मतलब है प्रेसिडेंट ऑफ यूएस काम करते रहेंगे, जैसे हमने रिसेंटली देखा था डोनाल्ड ट्रंप के केस में। पर थोड़ा वो आगे का लेवल हो जाता है, तो अभी हम उसको नहीं देख रहे हैं क्योंकि फिर वो टाइम भी लेगा और अभी इन एग्जामिनेशंस
इसमें थोड़ा उतनी डिफिकल्ट क्वेश्चन, डिग्री ऑफ डिफिकल्टी नहीं रहती है फ्रॉम द क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू। सो दैट इज वन रिमेंबर। अब उसको अगर हम कंपेयर करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के केस में, तो कुछ इंफॉर्मेशन हम यहाँ से ले लेते हैं। एग्जाम्पल what we have seen is like former president of India Pranab Mukherjee, recently we have seen a sad demise has taken place। तो प्रणब मुखर्जी जी के बारे में कुछ खास बातें देखेंगे। तो नंबर 1 is number 1 Pranab Mukherjee, he was born in December 1935 in Merathi, that is a place in Bengal Presidency। उस समय के टाइम पर, ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर, आज ये बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में है, वेस्ट बंगाल में। He did his masters in the political science and history from the University of Calcutta, और now this is also he also earned his LLB degree। तो ये कभी कभी इन एग्जामिनेशन में ऐसा लिखा रहता है which of the following is correct or incorrect about प्रणब मुखर्जी। इसके खास बात इसके अलावा क्या है, इन्होंने काफी सारी मिनिस्ट्रीज का चार्ज भी रखा है। तो रहता है कि किस किस मिनिस्ट्री के वो मिनिस्टर रहे हैं, तो कॉमर्स मिनिस्टर भी रहे हैं, वो फॉरेन मिनिस्टर भी रहे हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी रहे हैं, इसके अलावा वो डिफेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, और साथ ही साथ वो फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं। सो प्लीज रिमेंबर ही हैज हेल्ड नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज, फाइनेंस पोर्टफोलियो कई बार पॉपुलरली फाइनेंस पोर्टफोलियो, डिफेंस पोर्टफोलियो, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमर्स मिनिस्टर, तो खास तौर पे याद रखेंगे। इसके अलावा देखेंगे तो मिड टर्म, ये कुछ बुक्स हैं उनकी, प्रणब मुखर्जी जी की, मिड टर्म पोल, ऑफ द ट्रैक, सागा ऑफ स्ट्रगल एंड सैक्रिफाइस, कांग्रेस एंड द मेकिंग ऑफ इंडियन नेशन, द ड्रामेटिक डिकेड, द इंदिरा गांधी ईयर्स एंड द टर्बुलेंट ईयर्स, द कोलिशन ईयर्स, ये कुछ बुक्स हैं। तो अभी क्या है, जैसे डेथ हुई है प्रणब दा की, तो कभी कभी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से कौन सी बुक, चार नीचे लिख देंगे किसकी बुक है, तो वहां पर एक क्वेश्चन आता है कि मिड टर्म पोल, ऑफ द ट्रैक, या सागा ऑफ स्ट्रगल एंड सैक्रिफाइस, कांग्रेस एंड द मेकिंग ऑफ द इंडियन नेशन, द ड्रामेटिक डिकेड, द इंदिरा गांधी ईयर्स, टर्बुलेंट ईयर्स, द कोलिशन ईयर्स, ऐसे। फिर इसके अलावा प्रणब मुखर्जी जी को कुछ सम्मान मिले थे जो हमारे दूसरी कंट्रीज हैं, वो अपने जैसे हेड ऑफ द, अपने जो उनके हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, उस तरीके के सिविलियन, जैसे हमारा हाईएस्ट सिविलियन ऑनर इज भारत रत्न, तो यहाँ पर कुछ सिविलियन ऑनर, जैसे बांग्लादेश मुक्ति सम्मान उनको मिला था, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर ऑनर। इसके अलावा क्रॉस ऑफ नेशनल ऑर्डर ऑफ द आइवरी कोस्ट, जिसका ऑफिशियल नाम द कोट डी आइवोयर है, दैट इज आइवरी कोस्ट, उसको तो आइवरी कोस्ट की हाईएस्ट स्टेट ऑर्डर ऑफ नाइटहुड ऑफ द आइवरी कोस्ट। इसके अलावा ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मैकेरियोस, टू हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मेरिट अवॉर्डेड बाय साइप्रस, ये साइप्रस का एक हाईएस्ट अवॉर्डेड, सो वन इज फ्रॉम साइप्रस भी है। इसके अलावा आइवरी कोस्ट, दैट इज राइट इज कोट डी आइवोयर, और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट इज बांग्लादेश। तो उसमें से कुछ लिखा रहेगा कि इनमें से किस कंट्री का ऑनर प्रणब मुखर्जी जी को मिला था या नहीं मिला था, तो एक वो वाला क्वेश्चन है यहाँ से। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो हाँ, तो ये प्रणब मुखर्जी जी, हमने प्रेसिडेंट के साथ उनको कंबाइन कर लिया इंफॉर्मेशंस को, बाकी अभी हम आगे टॉपिक्स में देखेंगे तो वहाँ उन चीज़ों को देखेंगे, पर कुछ एक दो पॉइंट्स और देखेंगे। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ यूएस में क्या है, एक तो हमने देखा है कि टेन्योर वाइज देखेंगे, तो टेन्योर, पोटस का टेन्योर देखेंगे, पोटस, यहां मैं लिख रहा हूं पोटस, और ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कुछ चीजें हम पहले देख चुके हैं। पोटस में अगर हम टेन्योर देखते हैं तो कितने सालों का है, ये 4 इयर्स का है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के केस में देखेंगे तो 5 इयर्स, 5 साल, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर नॉट मोर देन 2, 2 बार से ज्यादा नहीं, नॉट मोर देन 2, 2 बार से ज्यादा कोई भी प्रेसिडेंट ऑफ यूएस के लिए कंटेस्ट नहीं कर सकता है। यहाँ पर नो लिमिट, इंडिया में कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट। बट आज तक कोई भी पर्सन 2 बार से ज्यादा, दो बार से ज्यादा तो कोई भी नहीं बना है। एक पर्सन ऐसे हैं जो एक बार से ज्यादा बने हैं, दैट इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ओनली president of India to serve
ट्वाइस, टू सर्व ट्वाइस, 2 बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तौर पे ये रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बाकी कोई भी एक बार से ज्यादा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं बना। सो दैट्स वन रिमेंबर। लेकिन क्या यूएस में 2 बार से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, लेकिन एक पॉपुलर प्रेसिडेंट है FDR, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जिन्होंने नाम दिया था यूनाइटेड नेशन का फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, Franklin D. Roosevelt. Franklin D. Roosevelt, who gave the term United Nation, FDR popularly. आपने मोदी जी के इलेक्शन के दौरान एक फेमस स्लोगन सुना होगा, that is अच्छे दिन, right? So just आपकी जानकारी के लिए, Happy Days Are Here Again was one of the important campaign song when the presidential candidate election was going on, and at that point in time, Franklin D. Roosevelt was contesting the election in the US election. He eventually got elected too. मोदी जी भी इलेक्ट हो गए थे वैसे तो, बट फिलहाल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे हैप्पी डेज आर हियर अगेन। वो अगर क्वेश्चन आता है कि कैंपेन सॉन्ग किस परसेंटेज ऑफ यूएस इलेक्शन में था, तो फिर वो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। यहाँ पर हैप्पी डेज आर हियर अगेन, हैप्पी डेज आर हियर अगेन। सो वन हैप्पी डेज आर हियर अगेन एक कैंपेन सॉन्ग था एट द टाइम ऑफ द फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। कभी कभी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को इस तरीके से कंबाइन कर देते हैं। दिस इज FDR, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ही सर्व्ड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूएस 4 टाइम्स, 4 बार प्रेसिडेंट ऑफ यूएस रहे हैं। दैट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, 4 बार मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ये। लेकिन 22nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट एंड यूएस रिस्ट्रिक्टेड द नंबर ऑफ टेन्योर्स टू 2, so now nobody can contest the election if that person has already served for 2 terms or in the second term for more than 2 years, then in that case it will be counted as a 1 term. It means एक पूरा टर्म काउंट करेंगे उसको, अब फिर वो इलेक्शन के लिए कंटेस्ट नहीं कर सकते। One is this, so not more than 2 terms, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। लेकिन 4 बार रहे हैं फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, द वन हु गिव द टर्म यूनाइटेड नेशन। आता है कि टर्म यूएन किसने दिया था, तो टर्म यूएन दिया था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। इनके नाम के साथ आंसर जुड़ता है टर्म यूनाइटेड नेशन, यूएन, टर्म यूनाइटेड नेशंस। ये किसने दिया, इट वाज गिवन बाय FDR। यूनाइटेड नेशन का प्रेडेसेसर था लीग ऑफ नेशंस, तो लीग ऑफ नेशन का टर्म किसने दिया था, वुड्रो विल्सन। ही इज आल्सो द वन द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। 4 प्रेसिडेंट ऑफ यूएस हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है, उनमें से एक वुड्रो विल्सन भी है, एक जिमी कार्टर है, एक बैरक ओबामा है, और एक अभी हमने नाम लिखा था, दैट्स थियोडोर रूजवेल्ट। सो दैट्स वन रिमेंबर। एक तो टर्म की बात हो गई है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के टर्म यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है नंबर ऑफ टर्म्स की, लेकिन वहां पर लिमिट है 2 बार से ज्यादा नहीं, यहाँ वहां 4 साल, इंडिया में क्या है 5 साल है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे कुछ कंपैरिजन प्रेसिडेंट ऑफ यूएस एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में, सो वन इज दिस। हाँ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के कुछ पॉइंट हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में फर्स्ट प्रेसिडेंट तो हमने देखा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक खास बात क्या याद रखेंगे, दैट 14th जो प्रेसिडेंट हैं, 14th प्रेसिडेंट वो है रामनाथ कोविंद। तो इसमें रामनाथ कोविंद, इसमें हम नाम क्या देखना चाह रहे हैं, नाम तो आपको पता है ही, बट नंबर याद रखेंगे। तो कितने प्रेसिडेंट इंडिया में रहे, वो 14th प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद। जैसे अभी हमने देखा यूएस में 45th पोटस कौन है, डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप 45वें प्रेसिडेंट हैं, और 14th प्रेसिडेंट, 14 प्रेसिडेंट, प्लीज नंबर की बात कर रहे हैं हम, जो लोग रहे, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार प्रेसिडेंट रहे, तो वो एक पर्सन है, एक व्यक्ति है। उसी तरीके से 14 लोग प्रेसिडेंट बने हैं रामनाथ कोविंद। लेकिन इन 14 लोगों में हम एक्टिंग प्रेसिडेंट को नाम को शामिल नहीं करते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, एक्टिंग प्रेसिडेंट। एक्टिंग प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट का काम कर रहे हैं, जब प्रेसिडेंट की एग्जांपल के लिए डेथ हो गई है या फिर प्रेसिडेंट नहीं है, तो उनकी जगह जो काम कर रहे हैं वो है यहाँ पर एक्टिंग प्रेसिडेंट। ही इज एक्टिंग एज प्रेसिडेंट ओवर देयर, वैकेंसी है तो उसकी जगह प्रेसिडेंट की एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। 3 लोगों ने एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पे काम किया है। एक वीवी गिरी है, दैट इज वीवी गिरी, जिन्होंने प्रेसिडेंट के तौर पे, बाद में प्रेसिडेंट के तौर पे भी इलेक्ट हो गए, वो वीवी गिरी के अलावा फिर बीडी जत्ती हैं, वीवी गिरी, और फिर पॉपुलर मोहम्मद हिदायतुल्लाह वो अकेले फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जिन्होंने एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पे भी काम किया है, और साथ ही साथ फिर बाद में वाइस प्रेसिडेंट भी बने हैं। प्लीज डू रिमेंबर, जब जाकिर हुसैन जी की डेथ हुई एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो उनके बाद में फिर वीवी गिरी उस समय वाइस प्रेसिडेंट थे, वो प्रेसिडेंट बन गए, लेकिन वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बन गए। फिर उन्होंने, प्रेसिडेंट के इलेक्शन होना था, तो उसके लिए उन्होंने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया। जब उन्होंने रिजाइन किया तो फिर कौन बनेगा प्रेसिडेंट, कौन बनेगा वहां पर प्रेसिडेंट, कौन प्रेसिडेंट का काम करेगा, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में
आर्टिकल 70 एक आर्टिकल है, आर्टिकल 70 में लिखा है कि पार्लियामेंट बाय लॉ may provide for contingency with respect to discharge of president functions, प्रेसिडेंट के फंक्शन डिस्चार्ज करने के लिए कोई कंटीजेंसी, उसके लिए पार्लियामेंट लॉ से चीजें प्रोवाइड कर सकती है। तो इसके लिए क्या किया, फिर पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया और उस लॉ में ये लिख दिया, फिर लॉ बनाया पार्लियामेंट ने और उस लॉ में लिख दिया कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने फंक्शन को डिस्चार्ज नहीं कर रहा है तो उसकी जगह कौन होगा, वाइस प्रेसिडेंट। ये तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है, लेकिन अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, तो फिर कौन होगा, फिर वाइस प्रेसिडेंट की जगह कौन होगा, तो फिर इसमें होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी मान लो नहीं है, अगर उनकी भी पोजीशन खाली है, तो फिर कौन करेगा, फिर होगा सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज। यूएस में और इंडिया में एक और फर्क होता है, यूएस में एक्टिंग प्रेसिडेंट है, वहां पर भी एक्टिंग प्रेसिडेंट का कंसेप्ट है, लेकिन वहां पर एक्चुअली एक्टिंग प्रेसिडेंट वैसे नहीं, वहां पर क्या होता है, अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो उसकी जगह जो प्रेसिडेंट बनेगा वो प्रेसिडेंट हो गया। जैसे प्रेसिडेंट की डेथ हो गई वहां पर, तो वहां पर प्रेसिडेंट की जब डेथ हो गई तो वहां पर प्रेसिडेंट की डेथ क्या है, अगर प्रेसिडेंट फंक्शन नहीं कर रहा है तो प्रेसिडेंट का फंक्शन जो परफॉर्म कर रहा है वो प्रेसिडेंट हो गया वहां पर। एग्जांपल वाइस प्रेसिडेंट, तो उसको बोलते हैं प्रेसिडेंट का सक्सेशन क्या है। तो यहां पर देखेंगे तो वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज, अगर वो अवेलेबल नहीं है। अगर उसी को हम यूएस के केस में देखें तो पोर्टस लाइन ऑफ सक्सेशन क्या है, पोर्टस लाइन ऑफ सक्सेशन की बात करेंगे तो पोर्टस लाइन ऑफ सक्सेशन में सबसे नंबर 1, अगर प्रेसिडेंट ऑफ यूएस नहीं है तो अगर पोर्टस लाइन ऑफ सक्सेशन देखेंगे तो सबसे पहले कौन आएगा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस। तो हमने यहाँ पे लिख दिया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस भी पोर्टस। नंबर 2, अगर ये भी नहीं है तो फिर कौन बनेगा, फिर बनेगा स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ये बनेंगी स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। अगर ये भी नहीं, प्लीज रिमेंबर यूएस में क्या होता है कि 4 साल के लिए जो प्रेसिडेंट बना है, अगर उसकी डेथ हो गई है, अगर उसने रिजाइन कर दिया है या अगर उसे हटा दिया गया है, तो जो सेकंड इन सक्सेशन होगा वो प्रेसिडेंट बन जाएगा। इलेक्शन नहीं होता है, इलेक्शन तो 4 साल बाद ही होगा। एग्जांपल के लिए जैसे इंडिया में अगर प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया है या प्रेसिडेंट की डेथ हो गई है तो फिर इलेक्शन होगा और जो नया पर्सन प्रेसिडेंट बनेगा वो पूरे 5 साल के लिए फिर प्रेसिडेंट रहेगा, जब तक कि अगर वो हटाए नहीं जाते हैं या उनकी डेथ नहीं होती या रिजाइन नहीं कर देते या फिर वो पूरे टर्म खत्म करके अपना रिटायरमेंट नहीं होता है। लेकिन यूएस में ऐसा नहीं, यूएस में क्या है, अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट है, जैसे हमने थियोडोर रूजवेल्ट के केस में देखा था, तो थियोडोर रूजवेल्ट की खास बात क्या है, थियोडोर रूजवेल्ट उस समय विलियम मैकिनली की डेथ हुई और वो फिर प्रेसिडेंट बन गए वहां पर। तो यूएस में इस तरीके से होता है कि अगर प्रेसिडेंट के केस में अगर प्रेसिडेंट को हम देखें तो प्रेसिडेंट की, अगर प्रेसिडेंट ऑफ यूएस की डेथ हो गई या रिजाइन कर दिया तो वाइस प्रेसिडेंट विल बी बिकमिंग अ प्रेसिडेंट। तो इसके लिए कंटिजेंसी बना रखा है, एक ऑर्डर बना रखा है यूएस में कि अगर कोई इनमें से चला गया तो फिर कौन प्रेसिडेंट बनेगा। तो प्रेसिडेंट ऑफ यूएस अगर चला गया, कुछ प्रॉब्लम होगी तो फिर कौन बनेगा, वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है मान लो तो फिर कौन बनेगा, स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। अगर ये भी नहीं है तो फिर कौन बनेगा, तो फिर इनके बाद में आएंगे जो एक तरीके से हमारे यहाँ जैसे डेप्यूटी चेयरपर्सन राज्यसभा है, तो जो सेनेट के एक तरीके के डेप्यूटी चेयरपर्सन है वहां पर बोलते हैं प्रेसिडेंट प्रो टेम्पोर और प्रो टेम्पोर प्रेसिडेंट ऑफ द सेनेट। तो यहां अगला नंबर किसका आता है, अगला नंबर आता है प्रो टेम्पोर प्रेसिडेंट ऑफ सेनेट, प्रो टेम्पोर प्रेसिडेंट ऑफ सेनेट। अगर ये भी नहीं है तो फिर इसके बाद में किसका होगा, उसके बाद में होगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। उसके आगे भी लंबी लिस्ट है, पर फिलहाल कम से कम एग्जामिनेशन के क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे। तो आप देखना वाइस प्रेसिडेंट भी अगर नहीं तो फिर कौन होगा, स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं, इंडिया में अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो फिर कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज। लेकिन ये प्रेसिडेंट नहीं बनते हैं, ये क्या बनेंगे, एक्टिंग प्रेसिडेंट बनेंगे। दे विल बी एक्टिंग एज प्रेसिडेंट, नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का फिर इलेक्शन होगा और फिर इलेक्शन में जो भी प्रेसिडेंट बनेगा वो बाकी के टाइम के लिए नहीं, वो पूरी के पूरा 5 साल का जो टेन्योर है उतना फिनिश करेंगे। यहाँ पे जो प्रेसिडेंट बनेगा वो प्रेसिडेंट 4 साल के लिए नहीं, वो उतना ही टाइम करेगा जितना टाइम उनके पुराने जो इससे पहले प्रेसिडेंट था उनका बाकी है। सो व्हाटएवर टाइम वाज रिमेनिंग from that term that belong to the president who may have died or resigned or not able to perform the functions of the president. So in that case, remember that is the difference between the POTUS and the president of India. 1-2 more points over there. If we talk about the Neelam Sanjeeva Reddy, right? This Neelam Sanjeeva Reddy. Now, in case of Neelam Sanjeeva Reddy, is what this is the unopposed, only president of India to get elected unopposed. So president elected unopposed question आ जाता है एग्जामिनेशन में, नीलम संजीवा रेड्डी। That's one examination point of view. इसके अलावा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल आप जानते ही हैं, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल फर्स्ट
woman president of India, and the only woman president of India, Pratibha Devi Singh Patil. That's remember. So some of the points we have seen. बाकी हम आगे